Good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you. So, today we are going to start our new chapter, that is Sales of Goods Act 1930. Sales of Goods Act 1930. Earlier, it was included in the Indian Contract Act 1872, but in the year of 1930, it has got a new legislation. Okay, it has been separated from the Indian Contract Act in the year of 1930 and forms a new legislation, forms a new act, that is in the form of Sales of Goods Act. Okay, fine. Now, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किन चीज़ों को लेके होते हैं, किन चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, इन केस ऑफ immovable property, in case of immovable property, we go for transfer of property act 1932. ठीक है, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, all the movable properties, they are included in the Sales of Goods Act 1930. Okay, so here you see this goods includes, sales of goods include growing crops. You know about the growing crops? आपको पता है growing crops, जो फसल होते हैं उसको बोलते हैं growing crops. ठीक है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, so that is a movable property. Okay, then standing timber जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जो उसके जो टिम्बर जो काठ होता है, जो वुड होता है, उसको हम लोग निकालते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, है ना. देन ग्रास, ओल्ड करेंसी. ओल्ड करेंसी, यू नो अबाउट ओल्ड करेंसी? अब तो वो यूज़ नहीं होते हैं. Whether we are using the old currency? No, not at all. We are using now the new one, the money currency, okay, from which we can buy things. लेकिन old currency से क्या हम कुछ खरीद सकते हैं? Can we buy the things from the old currency? No. Okay, so old currency is also included in the goods, in the Sales of Goods Act. ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग खरीद सकते हैं. ठीक है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये सब कंपनी लॉज में इंक्लूड होते हैं. ट्रेडमार्क, पैटेंट, गुडविल, जैसे कोई भी चीज़ जैसे आप खरीद रहे हो उसका ट्रेडमार्क देखते हो ना. ट्रेडमार्क, पैटर्न एक समान नहीं होता, उसको हम लोग खरीद सकते हैं ना. जैसे कोई ऑडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया, है ना. शेयर्स, स्टॉक, so these are included in the Sales of Goods Act. Okay, which are not included, which are excluded? Immovable property, ठीक है. Actionable claim, मनी और करेंसी. मनी और करेंसी जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है, दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, देन ये आपका कभी कभी आते हैं, ठीक है, कि मनी और करेंसी इज इंक्लूडेड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नॉट. ठीक है, और ये भी पूछते हैं कि ओल्ड करेंसी इंक्लूडेड है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए. सो प्लीज नोट इट डाउन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम जिसको आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट में. जैसे मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया. ठीक है, कहाँ से? एक शॉप से मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया, लेकिन उसका मैंने पेमेंट नहीं किया. ठीक है, आई हैव नॉट गिवन द मनी, आई हैव गिवन द चेक. इंस्टीड ऑफ कैश
आई हैव गिवन द चेक। तो जब मोबाइल शॉप वो चेक लेके बैंक में जाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, ओके। तब 3 टाइम्स बाउंस होने के बाद जब उनको द सेलर did not receive the amount, can he claim for that amount? Can he go to the court? Yes, ठीक है। So this is called actionable claim and it is included in, it is excluded in the sales of goods act, okay। Now please note it down। शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट मतलब शेयर्स जब आपको अलॉट किया कर दिया है उसके बाद, जैसे आपको मिल गया है ना शेयर्स, तो वो उस शेयर्स को लेके, जो शेयर्स आपको नहीं मिला है तो वो तो आप फिर सेल नहीं कर सकते हो ना। जो शेयर्स आपको मिल चुका है, दोज शेयर्स ओनली यू कैन गो फॉर सेल। Before allotment you cannot purchase or you cannot go for sale, isn't it? Written? Shall I move to the next slide? Okay, here you see, this is very important. You should know about what is sale and what is agreement to sale. Okay. Now, what is sale? What is the difference between sale and agreement to sale? Okay. Sale means transfer of property ownership immediately at the time of making the contract. Okay. An agreement to sale, ownership, in case of ownership there is no transfer of property to the buyer at the time of contract. जैसे आप एक मोबाइल शॉप में गए हो, ठीक है, मोबाइल ख़रीदने के लिए, ओके। तो जब आप गए हो मोबाइल ख़रीदने के लिए तो यू आर द, सपोज आई एम द बायर, ओके, एंड यू आर द सेलर, ठीक है। तो हम दोनों, दो पार्टीज होना पड़ेगा वहाँ पे, देयर शुड बी 2 पार्टीज फॉर सेल, ओके। तो मैं हूँ बायर और तुम हो सेलर, ठीक है। तो जब मैं मोबाइल शॉप में गई, मैंने तुम्हें बोला कि मुझे ओप्पो का प्रो कुछ एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो तुमने मुझे मोबाइल दिया और मैंने उसको ख़रीदा। तो जब मैं ख़रीद रही थी
तो उस समय वो रेडी था डिलीवरी होने के लिए, है ना. इट वॉज कंप्लीटली रेडी एट द डिलीवरी स्टेज. ठीक है, तो तुमने मुझे दे दिया मोबाइल, मैंने उसको ख़रीद लिया. ठीक है, एंड द ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर टू मी. ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर टू मी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल. ओनरशिप समझ में आ गया. ओनरशिप का मतलब टाइटल. ओनरशिप मतलब जैसे आप उस ओनर हो ना, आप उस चीज़ का मालिक हो, है ना. दैट इज कॉल्ड ओनरशिप. ओके. अब जैसे मैं एक मारुति डीलर के पास गई और मुझे एक मारुति कार ब्रेजा खरीदना है. ओके, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वो रेडी नहीं है. कार इज़ नॉट रेडी फॉर सेल. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मुझे गाड़ी कब मिलेगा. तो उन्होंने बोला, जो कार का डीलर है, उन्होंने बोला दैट यू विल गेट द कार आफ्टर 3 or 4 months. तो उसके साथ मेरा क्या हुआ, ये एग्रीमेंट टू सेल. समझ में आ गया, क्योंकि मुझे अभी तक ओनरशिप नहीं मिला है. द ओनरशिप हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू मी. ओके, फाइन. When the ownership has been transferred to the buyer, then it is called sale. When the ownership has not been transferred to the buyer, then it is called agreement to sale. Agreement to sale is a sale is a सेल इज़ अ एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की तरफ से अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस हो चुका होता है. ठीक है, अपना परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे हैव गिवन, दे हैव ऑलरेडी completed their obligation. Okay, in case of agreement to sale, यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की तरफ से ऑब्लिगेशन स्टैंडिंग है. ऑब्लिगेशन अभी तक उन लोग की तरफ से क्या नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस अब तक नहीं हुआ है. ओके, इज इट क्लियर. नाउ द रिस्क ऑफ लॉस. सी चिल्ड्रन, द रिस्क ऑलवेज moves with the ownership. Risk always moves with the ownership. जिसके पास ओनरशिप है उसी के पास रिस्क है. जिसके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिसके पास ओनरशिप नहीं गया है, तो रिस्क उसके पास अभी तक नहीं गया है, उसके पास कोई नई रिस्क है. ठीक है. जैसे बायर ने अभी मोबाइल खरीद लिया है, तो सपोज बायर ने मोबाइल ख़रीद लिया है तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो चुका है. अब अगर सेलर के पास सपोज मोबाइल रख के बायर बोलता है कि देखो तुम्हारे पास मैं अभी मोबाइल रख रहा हूँ, मैं इस थोड़े ही दूर से आ रहा हूँ, तो वो चला गया. तो अगर मोबाइल लॉस हो गया, मोबाइल अगर गुम गया, मोबाइल लॉस हो गया, मोबाइल का क्या हो गया, मोबाइल सपोज गुम गया, तो क्या हो जाएगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्क किसका होगा, बायर का, सेलर का नहीं होगा. पोजीशन सेलर के पास है, लेकिन ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास. जिसके पास ओनरशिप है उसी के पास रिस्क है. ठीक है, समझ में आया. Buyer cannot file a case against the seller. Why? Because the ownership has been transferred to the buyer. Understood now?
Here, risk of loss. The ownership has not been transferred to the buyer. Since the ownership has not been transferred to the buyer, so the risk is with the seller. Okay? समझ में आया? Is it clear? अब ये क्या है ascertain goods और unascertain goods? पता है? देखो, जो ये मैंने बोला ना मुझे एक गाड़ी खरीदना है, तो वो गाड़ी किस में है? बल्क में है. उस बल्क से हटा के मुझे एक कार मिलेगा, है ना? तो जो चीज़ बल्क में होता है, जो गुड्स बल्क में होता है, दोज आर कॉल्ड अनएसर्टेन गुड्स. और बल्क से जैसे ही ये सेपरेट कर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा? असर्टेन गुड्स. ओके, सपोज बिस्किट्स है, मिल्क बिस्किट, तो वो बल्क में है, बहुत सारा बल्क में है. तो मुझे मेरा सेल हुआ है, मैंने बोला है मुझे एक बिस्किट चाहिए, एक पैकेट बिस्किट चाहिए, तो वो बल्क से मुझे हटा के एक बिस्किट देगा ना. तो जब वो मैं खरीद ली, तो दैट इज कॉल्ड सेल. सो व्हाई आई कुड बाय दैट प्रोडक्ट, व्हाई आई कुड बाय दैट गुड? बिकॉज इट हैज बीन separated from the bulk. It has been separated from the bulk. The goods should be separated from the bulk for sale. Okay, but in case of agreement to sale, the goods are in the state of bulk. The goods are in the state of unascertain goods. Okay, समझ में आ गया? जैसे मुझे टोमेटो खरीदना है, टोमेटो जाके मैंने वेजिटेबल शॉप में मैं गई और वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे टोमेटो चाहिए 1 kg. तो वो बल्क में है ना टोमेटो, तो वहाँ से मुझे सेग्रीगेट करके देगा, वहाँ से मुझे सेपरेट करके देगा. सेपरेट करके 1 kg का टोमेटो मुझे सेपरेट करके मुझे देगा. एंड आई विल परचेज दैट वन. व्हेन आई विल बाय दैट 1 kg ऑफ टोमेटोज फ्रॉम द बल्क, दैट इज कॉल्ड सेल. और जब वो बल्क में है तब तक वो क्या रहेगा? अनएसर्टेन गुड्स. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? नाउ जस्ट इन रेम. व्हाट इज कॉल्ड जस्ट इन रेम? मतलब जब राइट्स एक बायर जब खरीद लेता है, जब राइट्स मतलब राइट्स नहीं, गुड्स कुछ खरीद लेता है, सेल हो जाता है, परचेज कर लेता है गुड्स सेलर से, तो वो राइट्स बायर के पास कंप्लीटली आ जाता है. तो बायर कैन यूज दोज राइट्स अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. he can purchase, he can sell also, he can use those things also. जो भी करे वो बेलमेन में भी दे सकता है, प्लेज में भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? तो दैट इज कॉल्ड जस्ट इन रेम. मीन्स राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. Okay, who has this right? The buyer. Okay, ये जो जस्ट इन रेम है ना, ये सिर्फ बायर के पास ही होता है, ये सेलर के पास नहीं होता है. ठीक है? नाउ एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट टू सेल मीन्स जस्ट इन पर्सनम, मीन्स राइट अगेंस्ट द इंडिविजुअल. यहां पे क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर है बस सेलर, मतलब वो सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में यूज कर सकता है. ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे गाड़ी लूंगा तो मैं दूसरे के पास भी बोलूंगा कि मुझे देखो वो गाड़ी नहीं दे रहा है. आई कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दैट अदर इंडिविजुअल्स. लेकिन मैं जो गाड़ी है, जो सेलर है, वो बेलमैन जो बायर है वो बेलमैन प्लेज में
नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बायर वो प्लेज में भी दे सकता है, बेलमैन पे भी यूज कर सकता है, ठीक है। ओके, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ओनली द अगेंस्ट द इंडिविजुअल यू कैन। ओके, राइट ऑफ रीसेल नॉट अवेलेबल विद द सेलर। राइट ऑफ रीसेल नॉट अवेलेबल विद द सेलर। यहाँ पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता है। जैसे मैंने तुमसे मोबाइल खरीदा, तो मैंने तुम्हारे पास मोबाइल को रख के मैं कुछ दूसरे जगह पे चली गई, तो तुम उसको मुझे नहीं बता के तुम उसको सेल नहीं कर सकते हो। द सेलर हैज नो राइट टू रीसेल द गुड which the buyer has already purchased. The seller cannot go for resale the goods to another buyer. ठीक है? But in case of this agreement to sale, the seller can resell the goods. Suppose मैंने बुक करके आया, मैंने बुक कर लिया कि मुझे ब्रेजा कार चाहिए, तो मैं नहीं गई 1 मंथ के अंदर बट 2 मंथ्स के अंदर, तो जो डीलर है वो सेल कर सकता है। द सेलर कैन रीसेल द गुड्स, रीसेल द गुड्स। व्हाई? कैन यू से व्हाई? हाँ हाँ हाँ, नहीं, क्यों बोलो, मेन बात उसमें क्या है? नो, नॉट एट ऑल, because the ownership has not been transferred, in case of agreement to sale। समझ में आया? और इसमें क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो चुका है, ठीक है। दैट्स वाई द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, बट हेयर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द सेलर कैन रीसेल द गुड्स, ठीक है। इज इट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। क्योंकि ओनरशिप जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इफ द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड, वंस द ओनरशिप ट्रांसफर्ड, देन आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब आप रीसेल नहीं कर सकते हो। बुक करके गए, हाँ, लेकिन बुक किया, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो नहीं है ना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, वो मैंने बुक करके गया है, वो उसमें पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर्ड होना पड़ेगा। ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड। नो नो, this one executed contract means performance completed, ओके। और इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस
स्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देखा है ना, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्ट, मीन्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। अंडरस्टूड? जो मैंने लिखा है ना साइड में, वो सब लिख लो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। मीनिंग समझोगे तभी लिख सकोगे। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, you will not be able to write. आपके जो फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ आप उसको नोट्स दे देना, ठीक है।
Okay, completed. Neat. Now we are going to read about this. Sales of Goods Act 1930 has been classified into what types of goods? Classification of goods. First one is existing goods. Existing goods. Now what are existing goods? Yes, very good. Which are in the deliverable state. Okay, which are ready during the time of delivery. Okay, fine. जो एग्जिस्ट करता है, जो गुड्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है फॉर सेल. ओके, द गुड्स विच आर एट द डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है, these goods are called as existing goods. Now these existing goods are further divided into three types: specific goods, unascertain goods and ascertain goods. Existing goods का तीन types है. First one is specific goods. इसका क्या होता है specific goods का? What are called specific goods? The goods which don't have any existing replacement, which don't have any existing replacement, जिसका कोई रिप्लेसमेंट आपका नहीं होता है, जो यूनिक होता है, जो स्पेसिफिक होता है. जैसे मैं एक गई, मुझे एक डॉगी खरीदना है, तो मैंने बोला कि मुझे यही दिस डॉगी ओनली आई वांट. तो उसका एक स्पेसिफिक नेचर है, उसका एक स्पेसिफिक रंग है, कलर है ना. तो दीज आर स्पेसिफिक. जैसे आपका एंटिक ज्वेलरीज हुआ, जैसे डायमंड का कोई तनिष्क हुआ, तो उसका स्पेसिफिकली दैट ज्वेलरी. फिर आपका कोई आपका जो पेंटिंग्स है, जैसे मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा किसका? लियोनार्डो दा विंसी. लियोनार्डो दा विंसी का एक ही पेंटिंग फेमस है. कौन? आपको पता होना है कि इफ आई एम गोइंग टू बाई दिस पेंटिंग मोनालिसा, देन वो किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का है. और वो एक ही पीस है, सिंगल पीस, स्पेसिफिक पीस. समझा? समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स. उसका कोई अलग रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, क्लियर? नाउ as unascertain goods and ascertain goods, इसको तो मैंने ऑलरेडी तुमको बोला है. unascertain goods, those goods which are in the bulk, which are in the form of a bulk, which are in the bulk form. जैसे मैंने बोला टोमेटोज का, पोटैटोज का, वो बल्क स्टेट में है. उसको आपने सेग्रीगेट नहीं किया है, उसको आपने सेपरेटेड नहीं किया है. तो जो सेपरेटेड किया नहीं हुआ है बल्क से, दोज गुड्स वी कॉल इट एज अनएसर्टेन गुड्स. अनएसर्टेन गुड्स. और एसर्टेन गुड्स मतलब जो आप सेग्रीगेट करके रखे हो, किससे? बल्क से. ओके, ठीक है, सेपरेट करके रखे हो. द सेपरेटेड गुड्स फ्रॉम द बल्क आर कॉल्ड एज ascertain goods, and the goods in the bulk form are called as unascertain goods. Is it clear? ठीक है. Now future goods. What is future goods? To be produced or manufactured in future. इसका अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसका अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में आपको मिलेगा, फ्यूचर में इसको बना के आपको देगा.
जैसे आप कोई गोल्ड का ज्वेलरी का शॉप में गए हो, तो वहाँ पे आपने बोला, जैसे मैं गई हूँ एक गोल्ड का शॉप में, गोल्ड ज्वेलरी का शॉप में, और उसमें मैंने बोला कि मुझे 20 ग्राम्स का एक ईयरिंग चाहिए, ठीक है, मुझे ये ईयरिंग ऐसा बनाना है, तो वो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, वो फ्यूचर में मुझे बना के मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके मुझे देगा, तो दैट दोज गुड्स आर कॉल्ड एज future goods. Understood? Which are not in the deliverable state, which you will get in the future. Okay? Which are not in the deliverable state. Now, contingent goods. You may understood now. You have already understood what is the meaning of contingent. Contingent का मतलब क्या है? Not sure. Not sure. Okay? To be or not to be, may or may not be, to be or not to be, may or may not be. आपको गुड्स का डिलीवरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको गुड्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है. Those goods are called as contingent goods, and these contingent goods are not called as existing goods. Okay? देखो, सपोज मैं गोल्ड के ज्वेलरी के शॉप में गई और मैंने बोला मुझे 20 ग्राम्स का एक गोल्ड का मुझे ईयरिंग चाहिए, ठीक है, तो जो ज्वेलरी में गई तब उसमें मुझे क्या बोला, गोल्ड का जो ज्वेलरी का जो शॉपकीपर है उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे बोला कि देखिए, अगर हम लोग का दुकान अगर उस दिन खुला रहता है तो आपको उस दिन मिल जाएगा आपको, अगर हम लोग का दुकान उस दिन बंद रहता है तो आपको उस दिन आपका गुड्स नहीं मिलेगा. सो दीज आर, दैट मीन्स इट इज अ कंटिंजेंट गुड्स. ओके, नॉट श्योर. ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बैंक लोन तभी ग्रांट करेगा जब शिप में मेरा कुछ गुड्स है वो सिंगापुर से आ रहा है. किस में आ रहा है? शिप में आ रहा है, ठीक है. अब तुमको वो उस जो मेरा जो गुड्स है उस स्टॉक से तुमको गुड्स चाहिए. ओके, वो बल्क में आ रहा है और उस गुड्स को बल्क से तुमको असर्टेन करके तुमको चाहिए, है ना. तो अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर मेरा शिप का सेफ अराइवल हो जाता है विद द गुड्स, देन यू विल डेफिनेटली गेट द गुड्स. इफ माई शिप, अगर मेरा शिप का सेफ अराइवल नहीं होता है along with the goods, then you will not get your goods. Then the goods I cannot deliver to you. That means it is a contingent good. Is it clear? Any doubt? Any doubt? And these contingent goods and the future goods, they are not called as existing goods. They are not in the form of deliverable state. They are not in the form of deliverable state. Okay? Fine? So please note it down. This is classification, okay? CLASSI, huh?
Just give me the book. क्या? हाँ, मैंगोज. मैंगोज भी बल्क में रहने से तो वो अनसर्टेन गुड्स हुआ. एग्जिस्टिंग में होगा. ओ, अब अभी तक आया नहीं है. हाँ, तब वो फ्यूचर गुड्स हो जाएगा. अगर लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तुमने मैंगोज का बात बोला है ना, मैंगोज का बात किस किस बेसिस पर बोला है, बोलो अभी बोलो. हाँ. हम्म. हाँ. हाँ. वो अगर तुम उसमें फ्यूचर गुड्स में बोल सकते हो, ठीक है. इट विल बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर गुड्स. ओके. लेकिन वो कंटिंजेंट गुड्स हो सकता है अगर तुमने मुझे ऐसा बता दिया कि आपको मैं मैंगोज दे भी सकता हूँ अगर मैंगोज लग जाए पेड़ पे. इतना मैंगोज अगर मुझे मिल जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है. और अगर नहीं मिला, नहीं, अगर आप मैंगोज नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा. समझ में आया? फ्यूचर गुड्स, इट विल बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर गुड्स ऑल्सो एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द कंटिंजेंट गुड्स इफ आपने उसमें कंडीशन रखा तो. इफ यू विल गिव द कंडीशन देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द कंटिंजेंट गुड्स. और अगर आपके पास अवेलेबल है, it is at the in the deliverable state, then it will be called as the existing goods and it will be from the unascertain goods. unascertain से ascertain में लाना है. फ्यूचर गुड्स में कंटिंजेंट फ्यूचर गुड्स एक ऐसा है कि हाँ, फ्यूचर गुड्स आप बोल सकते हो कि उसमें कंटिंजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स का ही एक पार्ट है, ठीक है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बिस्किट्स, मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में, अगर आपके पास डिलीवरेबल स्टेट में है तब तो आपको वो एग्जिस्टिंग गुड्स में होगा ना. लेकिन कंटिंजेंट गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होता है और फ्यूचर गुड्स में भी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होता है. समझा? कंटिंजेंट गुड्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि नॉट श्योर. ओके, बट फ्यूचर गुड्स इट इज श्योर. ठीक है. ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच इज़ अ existing good, which is a future good, which is a contingent good, specific good, uncertain goods, ascertain goods. You have to find out. Okay. ठीक है. Completed. So today I am completing here. Okay. Here I am completing this chapter. After means not this chapter, this topic. So in the next class we will go for ownership. Okay. So thank you.